Hello everyone, this video is in continuation to our previous videos. In previous video, I have explained you many words starting from alphabet A. So now also I will be focusing on alphabet A. आज के टॉपिक के अंदर जो हम मेन फोकस करेंगे वो हम करेंगे अल्कोहल रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, जिसके अंदर पहला वर्ड जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी वो है एब्सोल्यूट अल्कोहल. सो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो साइंटिफिकली प्रूवन कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का है अल्कोहल का कि अल्कोहल मेन 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल बिकॉज इट इज nothing but 99% weight by weight ethanol. That is, it is also known as dehydrated alcohol. It is 99% weight by weight alcohol. Okay, next is rectified spirit. Rectified spirit is 90% weight by weight ethyl alcohol produced from fermented molasses by distillation process. Third is proof spirit. It is an old term. If whiskey is poured on gunpowder and ignited, it explodes. We all know. Then it was labeled to be a proof strength. So the proof spirit is also known as proof strength when we pour whiskey on the gunpowder and ignite it and it explodes. But if the water is mixed to it, the gunpowder will not ignite. And this is 100% proof spirit. Then we can conclude that 100% proof spirit is 49.29% weight by weight, or we can say 57.1% volume by volume of alcohol. And the last but not the least is methylated spirit, which is used for industrial purposes, which is also known as denatured spirit, and is produced by adding 5 parts of wood naphtha, that is methyl alcohol, to 95 parts of rectified spirit so as to render it unfit for drinking. That is why it is used for industrial purposes. Next word will be abstain. Abstain is you can also use abstain in day-to-day life. Abstain means to refrain or restrain anyone from doing or consuming something. Generally it is used with respect to alcohol purpose only. Next is abstainer. Abstainer is जब भी हम किसी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट में बात करें और हम उसको एब्सटेन के रिस्पेक्ट में पढ़ें तो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल जो अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करता है. दिस इंडिविजुअल इज एब्स्ट्रेन्ड. देन इट कैन ऑल्सो बी नोन एज एब्स्ट्रेनर. नेक्स्ट इज एब्स्टिनेंस. Abstinence is a word, that Latin word derived from the summation or combination of ab and tenere. Ab means away or from, taking anything away from or to hold on anything. Okay, so it means not doing or consuming something over a period of time. अगर आप एक period of time के लिए किसी भी चीज की consumption को abstain करते हैं, रोक देते हैं, then that becomes abstinence of that particular thing. So for example, abstinence of alcohol. Alcohol को किसी particular period के लिए refrain कर देना, restrain कर देना. This can be considered under abstinence of alcohol. So continuing the terminologies, the next word would be abuse. This is a very general term which we may use in our day-to-day lives. As abuse may be used as a noun, then we can explain it as the act of using something wrongly. Very obvious. When we use or intend to use something wrongly or with wrong intentions, that becomes abuse or of anything. For example, abuse of privileges. हम नॉर्मली जैसे जॉब्स में करते हैं, जब हमारे को कोई प्रिविलेज मिलता है तो हम उसका एक्स्ट्रा या ओवर यूज करते हैं. दैट बिकम एन अब्यूज. सेकेंडली, abuse may be of a drug or overuse of alcohol. That is also known as abuse. This becomes substance abuse. जब हम किसी चीज का अब्यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, may it be drug or may it be alcohol. और तरह का अब्यूज होता है. वन ऑफ द टाइप ऑफ अब्यूज इज चाइल्ड अब्यूज. ये तो हम सब इसको जानते हैं. हम बहुत से सीरियल्स देखते हैं और मूवीज देखते हैं जिसके अंदर चाइल्ड अब्यूज की बहुत सारी बातें आती हैं. तो इसके अलावा भी कई तरह के अब्यूजेस होते हैं. दैट वी कैन डिस्कस लेटर. बट द मेन टाइप ऑफ अब्यूज विच वी आर फोकसिंग टुडे इज नॉन मेडिकल यूज
without therapeutic intent that may be also known as intoxication of anything. तो अगर हम नॉन मेडिकल यूज कर रहे हैं किसी भी ड्रग का, किसी भी कंपाउंड, किसी भी केमिकल का, बट विदाउट इट्स थेरेपेटिक इंटेंट, उसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, फिर भी हम उसको ओवरडोज की तरह लिए जा रहे हैं, दैट बिकम्स एन अब्यूज. इट कैन ऑल्सो बी यूज ऑफ ड्रग to an extent that interferes with the health and social backgrounds, social or emotional backgrounds of in the society. Okay. Then next term which comes to our mind is abulia. Abulia is you can define abulia as lack of willpower. जब हमारे अंदर कोई काम करने की विल पावर मतलब जो हमारी अंदर की एक वो बोलते हैं ना, एक इनर वॉइस आना कि हमें करना है, हमारे अंदर जो एक विल होती है किसी चीज़ को, डिटर्मिनेशन, उसकी कमी होना इज नोन एज अब्यूलिया. ठीक है. तो अब्यूलिया की अगर हम बात करें तो एक जनरल अगर एक टर्म की तरह इसको लेते हैं तो अब्यूलिया को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब्यूलिया इज ऑल्सो नोन एज सिंड्रोम ऑफ हाइपोफंक्शन. मतलब इसमें हमारे जो बॉडी के फंक्शन है वो सप्रेस हो जाते हैं. मतलब एक तरीके का आप इसको डिप्रेशन से कंफ्यूज भी कर सकते हैं इस टर्म को. तो हम इसीलिए इसको इट इज ऑल्सो नोन एज शूडो डिप्रेशन, क्योंकि इसमें बिल्कुल डिप्रेशन की तरह सिम्टम्स होते हैं अब्यूलिया के अंदर, कि हमारा किसी चीज़ में मन ना लगना, क्योंकि हमारी विल पावर क्या है वो कम हो गई है उस चीज़ को करने की. तो हमारे अंदर लैक ऑफ इनिशिएटिवनेस आने लग जाती है, हमारा थॉट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है बॉडी का. और इसके अलावा ये माइनर फॉर्म है ऑफ ए काइनेटिक म्यूटिज्म. ठीक है. काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, ए मीन्स नॉन मूविंग, नो मूवमेंट, और इसके साथ साथ म्यूटिज्म मतलब स्लो डाउन, शांत हो जाना. ठीक है. तो इसके अलावा अगर हम कॉज की बात करें तो क्या होता है कि अब्यूलिया कॉज हो रहा है. तो अब्यूलिया में रिजल्ट फ्रॉम फ्रंटल लोब डैमेज, most particularly that involving the frontal convexity, and also has been reported that with the focal lesions of caudate nucleus, thalamus and midbrain. ओके. तो आपका अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम दोबारा से रिकॉग्नाइज करें तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर जो मिड ऑफ द ब्रेन में आता है, उधर एक सर्कुलर पोर्शन ड्रॉन होता है, वो होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस बीच में थैलेमस के साथ, और मिड ब्रेन के रीजन की बात हो रही है. तो वहां पर जब डैमेज होता है एक वहां पर, और दूसरा फ्रंटल लोब में जब डैमेज होगा, पूरा इकट्ठा जो डैमेज हुआ, इसकी वजह से अब्यूलिया की कंडीशन आ सकती है. तो इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है, एज विद ए काइनेटिक म्यूटिज्म इट इज लाइकली दैट लेजन्स एनीवेयर इन द सेंट्रो मीडियल कोर, सेंट्रो मतलब सेंट्रल और मीडियल जो बीच में कोर है ब्रेन का, ऑफ ब्रेन, फ्रंटल एंड सब कॉर्टिकल सर्क्यूलेटरी, फ्रॉम फ्रंटल लोब टू ब्रेन स्टेम मे प्रोड्यूस दिस पिक्चर. ओके. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब्यूलिया के जो किस वजह से अब्यूलिया हो सकता है, तो इट मे बी ड्यू टू फ्रंटल लोब डैमेज. ये कॉन्वेक्सिटी जो है फ्रंटल लोब की, इसमें डैमेज की वजह से. सेकेंडली, इट मे ऑल्सो बी रिपोर्टेड विद द फोकल लेजन्स ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस. दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस. इसके अंदर भी फोकल डैमेज होने के चांसेस की वजह से अब्यूलिया कॉज हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्स्ट इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, सेकेंड विल बी थैलेमस, एंड थर्ड विल बी मिड ब्रेन. ये तीनों के अंदर किसी भी तरीके का जो डैमेज होता है उसकी वजह से अब्यूलिया की कंडीशन अराइज हो सकती है. ठीक है. अगर पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजिकली अब्यूलिया मे बी ऑब्जर्व्ड इन किन के अंदर अब्यूलिया की कंडीशन आ सकती है. देन फर्स्ट विल बी इन्फार्क्ट्स इन एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी टेरिटरी एंड रप्चर्ड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म कॉजिंग बेसल फोरब्रेन डैमेज. तो फोरब्रेन डैमेज के केस के अंदर अब्यूलिया देखा जा सकता है. सेकेंडली, क्लोज्ड हेड इंजरी. अगर दो तरह की इंजरी होती है, एक होती है क्लोज्ड हेड इंजरी एंड अनदर वन इज ओपन हेड इंजरी. तो क्लोज्ड हेड इंजरी के केसेस में अब्यूलिया के चांसेस ज्यादा होते हैं. थर्ड इज पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज में समटाइम्स एज अ फोर रनर ऑफ अ फ्रंटल टाइप डिमेंशिया के अंदर भी अब्यूलिया पाया जा सकता है. अदर कॉज ऑफ फ्रंटल लोब डिजीज आर ट्यूमर, एब्सेस एंड सो ऑन. Over the top to this, metabolic or electrolyte disorders, let's say hypoxia, hypoglycemia, hepatic encephalopathy may also be observed, may also lead to abulia. At last, I would like to tell you that treatment for abulia is of underlying cause where possible. There is an anecdotal evidence that dopaminergic therapy, as we all know, dopamine is circulated or regulated via this pathway only. This horse like जो ये structure होता है न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस वाला, इसी रीजन में जो आपका डोपामीन मैकेनिज्म है वो रन करता है. तो
ऐसा ऐसा मतलब एविडेंस हुआ है दैट देयर इज एन एनेक्डोटल एविडेंस दैट डोपामिनर्जिक थेरेपी सच एज यूजिंग ब्रोमोक्रिप्टिन एंड लीवोडोपा में समटाइम्स ऑल्सो हेल्प्स। इसके साथ मैं आपको एक जो भी हमने अब्यूज पढ़ा था उसका एक डिफ्रेंशिएशन देना चाहूंगी अब्यूज और मिसयूज के बीच में। अब्यूज के लिए हमने पढ़ा दैट अब्यूज इज अ नॉन मेडिकल यूज विदाउट थेरेप्यूटिक इंटेंट, whereas on the other hand misuse is over prescription या over prescribing by doctor। ठीक है, तो अब्यूज तो होता है हमारा जो है, एक अब्यूज क्या है कि हम किसी ड्रग को यूज कर रहे हैं बट विदाउट एनी मेडिकल कंटेंट या इंटेंट। बट मिसयूज क्या होता है, जो प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब करे पेशेंट को, जो डॉक्टर ने पेशेंट को दवाई दी बट पेशेंट उसका ओवर यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है एक तरीके से। दिस कैन बी collectively considered in misuse। ठीक है, and so I would like to conclude with this misuse only। So hope you like the video, so stay tuned for more such videos and thank you।